See. So today we begin with this chapter relations. Now, I think before beginning this chapter relations, I need to first of all start with the basic concepts of class level. And so the very basic concepts which you must start, which you must know is what is the meaning of ordered pairing relations, or you can say in a set. So set के अंदर ये ordered pair का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज तो ध्यान से नोट करना, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा. In first bracket we write is called an ordered pair, which if you plot graphically, it is a point. Okay, so every ordered pair graphically represents what? A point, we can say. कैसा plane पे? In xy plane, in two dimensional plane, मतलब जहां पे दो डायमेंशन होगा, जहां पे x axis और y axis होगा. Now, ordered pair x comma y is not same as y comma x. As you know that point 2 comma 3 is not same as 3 comma 2. So similarly, x comma y is not same as y comma x. 2 comma 3 represents a point, 3 comma 2 represents another point in a plane. And so we come to the conclusion that if two ordered pairs will be equal, then what is the condition for which these two ordered pairs will be equal? They will be equal under the condition that the first component of the ordered pair, is equal to first component of the second ordered pair, and the second component is equals to second. Or we can say this way, that x coordinate is equals to x and y coordinate is equals to y. तभी जाके हम बोल सकते हैं कि दो ordered pairs equal. Now based on this condition we can say law of equality of two ordered pairs. You may get a question in exam that what is the value of x and y for which these ordered pairs are equal. x और y का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये ordered pairs equal होगा. तो क्लियरली यहाँ पे देख के तुमको समझ में आ रहा है कि if I put the value of x equals to 2 and if I put the value of y equals to 2, this ordered pair will be equal. And so we can say, if you see the calculation, the steps, then we can say by comparing, we get 2x equals to 4 and 3y equals to 6. तो यहाँ से x का वैल्यू 2 और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. So this is the first concept which you require before starting this relations. Now the second point. Second point is the product of two sets. Suppose you are given a set A in which the elements are 1, 2, 3. Another set B in which the elements are -1, 1, let's say. And suppose number 1, you have to find out A cross B. Now the question is, what is A cross B? A cross B क्या है? Make sure that if A is a set, B is a set, A cross B is a set. मतलब A cross B हम लोग क्या फॉर्म करना चाह रहे हैं? हम लोग एक सेट फॉर्म करना चाह रहे हैं. और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है. So the first thing which we have to understand is that as A is a set, B is a set, A cross B is a set. तो A cross B is a set. So in this set क्या होगा एलिमेंट्स? Elements will be ordered pair. Elements will be ordered pair format. Clear? So the first thing which I am writing is the format of the elements in the set A cross B, where we find that the first component of this ordered pair will belong to set A. The reason is because we are finding out A cross B. So as we are finding out A cross B, so in this set, every ordered pair's first component will come from set A, and the second component will belong to set B. It means we can say this way, we are simply pairing every element of set A to an element of set B, we can say. So x belongs to A and y belongs to B, we can say this way. All right, and so as a result we find that if every element of set A is paired with an element of set B, so every one element of set A is associated with how many elements of set B? 2. With how many elements? 2. As we have got 2 elements in set B.
सो अगर एक एलिमेंट 2 के साथ एसोसिएट होगा तो फिर 3 एलिमेंट कितने के साथ एसोसिएट होगा, कितने एसोसिएशन हम फॉर्म कर पाएंगे, मतलब कितने ऑर्डर पेयर्स फॉर्म कर पाएंगे। 3 2 just 6 नॉर्मल, 2 इसके साथ 2 इसके साथ 2, तो 2 + 2 + 2 और डायरेक्ट 3 × 2 that is 6 is equal. So from here we come to the conclusion that what is the meaning of ordered pair, ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग जो उसका कार्डिनल वैल्यू नंबर है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर डिटरमाइन करने के लिए मुझे कोई यहाँ पे सेट्स पूरा लिखना नहीं है। I don't have to write down all the elements of the set. It is very much clear that if you want to find out the cardinal number of set A cross B, it is number of elements present in A into number of elements present in B. On the other hand, suppose अगर A cross B ये है तो फिर B cross A क्या होगा? Let me tell you one thing, that the number of elements will remain unchanged, but yes, the elements present in the set will change because in this case we are finding out ordered pair from set A to set B. Here in B cross A we will find out ordered pair from B to A. मतलब we will pair every element from every element of B with an element of set A, which means that the first component will belong to set A, set B, and the second component will belong to set A because we are finding out B cross A. So it doesn't matter whether you write x, y, y, x, a, b, c, d. That is not the main thing. The main thing is this part, this definition. Like we have written here that x belongs to A, y belongs to B. वो important है। ये नहीं कि सर आपने यहाँ पे भी x, y लिखा है, यहाँ पे भी x, y लिखा है, फिर ये कैसे different हुआ ना। यहाँ पे हम लोग x belongs to B लिखेंगे और y belongs to A लिखेंगे। Did you get my point? And I hope you can determine what is B cross A. So elements will be -1, -1, -1, -2, -1, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 3. I hope it is clear to everyone. Hurry up, copy and fast. So I'll just go brief, very fast, so that everything is clear. Class 11, and then we can move to class 12 part, so that you will not face any problem. So please copy it on fast. So the third point is, suppose we have got set A in which the elements are, let's say, -1, 0, 1. Second set B in which the elements are -1, 0, 1, 2. Another set D in which the elements are -1, 0, 1. Now see, like when we are when we are trying to show the relationship between an element with a set, मतलब ये एलिमेंट ये सेट का, जैसे ये एलिमेंट इस सेट का है या नहीं है, दो क्वेश्चन है कि नहीं, है या नहीं है, मतलब बिलोंग्स टू कर रहा है या नहीं बिलोंग्स कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है उस सेट में। सो वी यूज बिलोंग्स टू सेट। जब भी हम लोग एलिमेंट को सेट के साथ अगर बताना हो कि क्या उसमें वो बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल। वी यूज बिलोंग्स टू सिंबल। नहीं बिलोंग कर रहे तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल। तो वैसे अगर हमको मान लो दो सेट के बीच का हम क्या कर सकते हैं, दो सेट में हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, दो सेट में हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या वो इक्वल है या नहीं, है कि नहीं, इक्वल है या नहीं, हम ये बोल सकते हैं। क्या वो इक्वल नहीं है, मतलब दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या वो इक्विवेलेंट सेट है या नहीं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। फिर यहाँ पे दूसरा बात आता है कि कैसे हमको पता चलेगा कि ठीक है इक्वल, मतलब चलो ठीक है बराबर हो गया कि इस सेट के अंदर एलिमेंट और दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। नॉट इक्वल मतलब पता चल गया कि कोई ना कोई सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है जो कि कॉमन नहीं है, मतलब अनकॉमन एलिमेंट्स है, मतलब वैसे एलिमेंट है जो दूसरे में नहीं बिलोंग करे या दूसरे के एलिमेंट पहले वाले में नहीं बिलोंग करे, हम ऐसे बोल सकते हैं। बट एक बात बताओ, अगर मुझे ये बोलना हो कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, वो कैसे हम लोग करके दिखाएंगे, वो कैसे, किस सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग, that's why we have a symbol called subset and proper subset. All right everyone, so that's why we are studying this symbol called subset and proper subset. So we say that A is a subset of B because all the elements of set A present on the left hand side, all the elements present in the set on the left hand side, the सारे elements किस सेट में बताओ तो right hand side पे। तो मतलब तुम लोग जब ये लिख रहे हैं ना कि A is a subset of B, तुमको B को ध्यान ही नहीं देना है कि B क्या है, हमको B से क्या मतलब है। मैंने बस तुमको ये बोला कि सबसेट का मतलब क्या हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट है ना उसके
उसके सारे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट होना चाहिए? राइट हैंड साइड में। दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। ज्यादा हमको इसमें अब इसके आगे हमको ये नहीं सोचना है कि कभी अगर बराबर हो गए दोनों के एलिमेंट तो बराबर हो गए, तो मैंने तो ये तो नहीं बोला ना कि बराबर होगा तो तुम ये नहीं लिख सकते हो, मैंने तो सिर्फ ये बोला तुमको, मैंने ये चीज तुमको बोला कि कंडीशन क्या है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट्स B में ज्यादा वाला एलिमेंट है या नहीं है ज्यादा, उससे हमको क्या मतलब, तभी भी हम लोग ये वाले सिंबल दे सकते हैं। सो कैन आई से दैट B is a subset of A? No, it's absolutely wrong. Can I say that A is a subset of D? Yes. Can I say that D is a subset of A? Yes, sir. And also we find that D is a subset of D we find. Okay, ये तो हो गया सबसेट का सिंबल। अब हो गया ये हो गया सबसेट, ठीक है। अब जैसे अब हमको पता है कि सारे, जैसे कि हमको पता है कि सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं, बट सारे इंटीजर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। सो सेम वे सबसेट पढ़ लिया हमको। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में तुमको ये ध्यान रखना है, लेट मी जस्ट गिव यू एन जस्ट अनदर सेट, लेट्स से x and y, लेट्स से x is a subset of y. Listen here, I'm just writing without giving any example. I mean example means x is any set, y is any set. So if I say that x is a subset of y, क्या इससे ये क्लियर होता है कि सेट y में ज्यादा एलिमेंट है या y और x के अंदर बराबर एलिमेंट है? क्या ये क्लियर होता है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, x का सारा एलिमेंट y में प्रेजेंट है, y में ज्यादा नहीं भी हो सकता है, a के सारे एलिमेंट d में प्रेजेंट है, d में के सारे एलिमेंट a में प्रेजेंट है, फिर भी हम लिख रहे हैं इसे सबसेट ऑफ d। सो x इज अ सबसेट ऑफ y मींस x के सारे एलिमेंट y में है। और अगर हम साथ में ये भी लिख दें कि n of x is not equal to n of y, what do you conclude from these two things at a time? If it happens in two sets, can you tell me? So we find that x के सारे एलिमेंट्स y में है, बट किस सेट के अंदर कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट्स है? ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि सर आपने तो यहाँ लिखा है n of x not equal to n of y, तो आप कैसे स्टेट कर सकते हैं कि y में ज्यादा एलिमेंट है? क्योंकि उससे पहले ये भी तो लिखा हुआ है कि x के सारे एलिमेंट y में प्रेजेंट है। So from here we come to the conclusion that x is a proper subset of y. X is a proper subset of y. So out of these 1, 2, 3, 4 situations, when in every situation it is a subset का condition satisfied, मतलब जो भी है वो true है। So out of these 4, which out of 1 or 2 is satisfying this condition? Can you tell me? So A is a proper subset of D, and D is a proper subset of and D is a proper subset of D, we can say. All right, everyone, and make sure that if suppose let's say E and F, okay, if E is a subset of F and F is a subset of E, please make sure that E and F are what type of set? Equal set, equal not equivalent तो होगा ही अगर इक्वल है तो, लेकिन इक्विवेलेंट का जो यहाँ पे इक्विवेलेंट से भी एक और कंडीशन सेटिस्फाई करा जा रहा है, क्या कि वो दोनों इक्वल सेट है, बिकॉज़ E के सारे एलिमेंट्स F में है, F के सारे एलिमेंट्स E में है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है, लेट्स सी। Now, so all the basic concepts are done. Now, relations भी तो क्लास 11 में किया हुआ था, तो क्या तुम लोगों को याद है रिलेशंस? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं रिलेशंस। तो रिलेशंस क्या होता है, लेट्स सी। तो रिलेशंस में अगर तुम देखो तो ये बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। रिलेशंस मतलब x is a son of y, मतलब y is a father of x, तो ये रिलेशन ही तो हुआ। तो रिलेशन ही तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बस अब हम रिलेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे, और रिलेशंस में जो हमारे, क्योंकि अब इतना तो हम लोग गौर से नहीं देखते ना कि ऐसा रिलेशन वैसा रिलेशन, हम लोग ये तो अपने डे टू डे लाइफ में इतना दिमाग नहीं लगाते, बस रिलेशन है बस हो गया खत्म, उसके आगे हम लोग सोचते ही नहीं है। तो हम लोग अभी इसमें बहुत दिमाग लगाने वाले हैं कि रिलेशंस का टाइप्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज मैथ्स में रिलेशंस का क्या काम है, अगर हम वो जाने,
अगर हम स्टडी अगर आप बताना चाहें तो आई विल टेक ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. लेट मी कम टू द टॉपिक रिलेशंस. और जो तुम्हारे दिमाग में रिलेशंस लिख के आ रहा है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. इट्स नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गेटिंग इन योर माइंड फ्रॉम द नॉर्मल जो टर्म रिलेशनशिप, वही हम लोग अभी भी पढ़ने वाले हैं. बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सेट्स. क्लियर? एंड देन स्लोली यू विल फाइंड दैट हम लोग सेट्स के बाद मतलब जो सेट है उसमें बहुत कुछ हम लोग डिफरेंट मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो एग्जांपल्स आते हैं, से x is a I mean a son of y, I mean y, x is a wife of y, x is a triangle is similar to triangle b. मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना वो सब तो रिलेशन ही तो है. दोनों में रिलेशन क्या है? ये दो ट्रायंगल में रिलेशन क्या है? दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. ठीक है, तो x और y के बीच का रिलेशनशिप क्या है? दे आर फ्रेंड्स. तो बहुत कुछ मतलब हम लोग रिलेशन जो हम लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ रहे हैं, सो द सेम रिलेशन वी आर गोइंग टू स्टडी. तो दो कहां दिमाग में है? रिलेशन एक में हो सकता है. I cannot say that I am a friend of myself. I cannot say. मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा तुम्हारा लिटरेचर टर्म में जो तुम्हारे इंग्लिश टीचर समझाते हैं ना, वो बहुत मेटाफर सिमिली क्या वो लोग माउंटेन से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं उन लोग, और तो बहुत कुछ नेचर से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं. लेकिन मैथ्स में नेचर से कोई फ्रेंडशिप नहीं. ठीक है, मैथ्स इज अ डिफरेंट थिंग. मैथ्स में सब कुछ लॉजिकल होना चाहिए. अगर मैथ्स की तुम कहीं भी कोई लॉजिक में अगर तुम समझाओगे ना कि आई एम मतलब नेचर तो मेरा दोस्त है, ऐसे अगर हम बोलेंगे तो मैथ्स में थोड़ा इलॉजिकल लगेगा. कोई नहीं बोलेगा कि मतलब नेचर और ह्यूमन बीइंग दोनों फ्रेंड्स हैं. तो मतलब मैथ्स में सब चीज नहीं आता है. ये फिलोसफिकल है, ये बहुत ही अलग तरीके से तुम्हारे इंग्लिश टीचर अगर हम जितना लाइन बोले ना उतना वो कंप्लीट करने में दिन भर लगा देंगे. So let's not go to that topic. So let me just talk about this topic relations mathematically. तो ध्यान से एक बार नोट करना. सबसे पहला चीज रिलेशन क्या है? देखो एक बार, रिलेशन इज अ सेट. वो सेट के अंदर हम क्या लिखेंगे? वो सेट के अंदर दो सेट का के बीच का जो एलिमेंट्स है उसके बीच का रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप क्या? सन आई मीन वाइफ, क्या मतलब फ्रेंड, या वो ग्रेटर देन, या वो स्मॉलर देन, या वो इवन नंबर. क्या है रिलेशन? रिलेशन तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि इन दोनों में जब हम रिलेशन निकालने का सोच रहे हैं, बहुत दूर दूर कम लोग रिलेशन निकाल देते हैं. वो मेरे चाचा का पापा का बेटा का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं. तो रिलेशन हुआ ना बीच में, कुछ ना कुछ तो कंडीशन आया ना. तो जैसे तैसे हम जोड़ के हम लोग ने रिलेशन निकाल लिया ना कि वो मेरा ऐसा है, रिलेटिव है. अगर वो मोदी है तो मोदी मेरा टाइटल है, तो बस मोदी मेरा बस घर का ही है. तो वैसे रिलेशन तो वही है, वही सिंपल. तो मुझे रिलेशन तो कुछ देना पड़ेगा ना. तो आज भी हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं. तो मतलब रिलेशन में सबसे पहला चीज क्या होता है कि दो फैमिली मतलब दो सेट होंगे, और दोनों सेट के मेंबर्स को मुझे रिलेशनशिप दोनों के बीच का निकालना है. वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड रिलेशन नहीं होना चाहिए. कुछ भी हम नहीं करके रिलेशन निकाल सकते. तो वहां पे उस पर्टिकुलर रिलेशन में क्या होगा कि वो एक सेट है, सेट ऑफ एन ऑर्डर पेयर्स. आर क्या है? उस रिलेशन का नाम है. ऑर्डर पेयर क्या है कि एक्स वाई के बीच में क्या है? एक्स और वाई के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप अगर बन रहा है, मतलब जो दिया हुआ है, जो रिलेशनशिप वहां दिया हुआ है, जो रिलेशनशिप वहां पे डिफाइंड है, अगर उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब जाके हम लोग उसके अंदर इसके अंदर लिखेंगे. ठीक है, कोई भी हम रिलेशन को नहीं लिखेंगे, बिकॉज सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड. मतलब वो कुछ भी नहीं होता है, वहां पे कुछ भी थोड़ी ना लिख देते. We write only that particular elements in that set which which is as per the condition, which is as per the definition, I must say. So similarly, अगर मान लो relation is an ordered pair of two components when x related to y mathematically, okay, where we find that x belongs now in your syllabus you have got a relation in a set. Relation in a set का मतलब क्या होता है? रिलेशन इन द सेट का मतलब होता है कि एक ही परिवार में, मतलब एक ही फैमिली में, मतलब रिलेशनशिप क्या है? कोई किसी का भाई है, कोई किसी का एल्डर ब्रदर है, मतलब इस तरह के बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं. क्योंकि हम फैमिली के अंदर भी तो रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं ना कि ये कौन है, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? सन एंड क्या बोलते हैं, फादर का रिलेशनशिप है. तो वैसे करके हम लोग जो रिलेशन पढ़ने का बात कर रहे हैं वो क्या है बताओ तो? इट इज अ रिलेशन इन, दिस इज कॉल्ड आर इज अ रिलेशन. R is a relation in A. So R is a relation in A का मतलब क्या होता है? मतलब उसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस रिलेशनशिप को, वो उस कंडीशन को क्या करना चाहिए? सैटिस्फाई करना चाहिए. So we are not studying relation from A to B. Are you getting my point? We are not studying relation from A to B.
we are studying relation in a set, मतलब in a family. Clear? It means that so r's are related to y. So let me just give one example so that it is more clear to you. Suppose मान लो एक रिलेशन है r x, y, x minus y is 0. x, y, I don't need to write x, y belongs to it because r is a relation in it. वो हमको समझ में आ जा रहा है कि वो लिखा होगा बुक में, क्वेश्चन में लिखा होगा सेट ए है मान लो 1, 2, 3, ठीक है, और वो वहां लिखा होगा उस क्वेश्चन में r is a relation in a where r equals to x, y, x minus y is equal to 0. तो a क्या है 1, 2, 3. So can you tell me in relation r what will be the elements? 1, 2, So it will be 1, 2. I'm sorry. Because x and y both belongs to set A. So अगर हम x 1 ले और y भी 1 ले तो 1 minus 1 क्या होगा 0. उसके बाद 2, 2 क्या होगा and 3, 3 क्या होगा वो भी 0. So I hope you are getting my point everyone. तो ये हो गया तुम्हारा relation in set A. Relation in set A satisfying this condition. मतलब यहाँ पे दोनों के बीच का relationship क्या है कि जो भी है वो इस तरह में जो difference है उसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए. समझ में? तो relation mathematically कैसे भी फॉर्म में दिया जा सकता है. यहाँ पे जैसे mathematically किस फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, इनइक्वालिटी के फॉर्म में, कुछ भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है. उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सैटिस्फाई करेगा सेट ए के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स, तो वो ऑर्डर्ड पेयर मैं किसके अंदर लिख दूंगा रिलेशन आर के अंदर. बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है. कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे x minus y equal to 0 है, ऐसा भी हो सकता है. मान लो एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं. r is a relation in A. Let's say r is a relation in A, वो फिक्स्ड है. तो अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा जाए x, y, x square equals to 1. समझ में आ रहा है ना? x square equals to y यहाँ पे एक ही चीज हो सकता है. कौन हो सकता है? 2, 1. Because अगर हम x का वैल्यू 1 ले और y का वैल्यू 1 ले तो 1 square equals to 1. यस, इस रिलेशन के अंदर सिर्फ क्या आ जाएगा? एक ही एलिमेंट आ जाएगा 1, 1 ही है. Are you getting my point everyone? Stop it fast. So everyone note down. Suppose यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं कि what is domain of R, तो बता सकते हो डोमेन का मतलब क्या होता है? देखो, डोमेन का मतलब होता है कि जो रिलेशन है उस रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट का जो सेट है उस सेट को क्या बोलते हैं पता है? उसको डोमेन बोलते हैं. तो बताओ तो पहला कंपोनेंट का जो सेट है वो क्या होगा? इट विल बी 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 इज डोमेन. देखो डेफिनेशन पे जाओ, ये मत जाओ सर यहाँ पे तो डोमेन और रेंज एक हो जा रहा है, सर यहाँ पे तो डोमेन और कोडोमेन एक हो जा रहा है. उसका चिंता नहीं करना है. हम लोग को डेफिनेशन के हिसाब से जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं उस पे जाना है. तो डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन आर. व्हाट इज रेंज? सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन आर. एंड व्हाट इज कोडोमेन? जो सेकंड कंपोनेंट है, देखो रिलेशन आर का जो सेकंड कंपोनेंट है, बताओ तो सेकंड कंपोनेंट किस सेट को डायरेक्टली बिलोंग कर रहे हैं? ए. सो ए क्या हो गया बताओ तो? पूरा कोडोमेन हो गया. एक चीज मैं बताना भूल गया, एक बात बताओ, अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं ना, इस पार्ट को, इफ आई कैंसल दिस पार्ट, कैन यू टेल मी एवरीवन, तो क्या बन जाएगा वो? देन अभी हम लोग ने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पढ़ा, ये पॉइंट 4 पढ़ा. कौन से पॉइंट के अंदर वो आ जाए, मतलब फिर वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? कैन यू टेल मी? मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं x, y belongs to A, तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट. दैट्स ऑल. वो तो हो गया दो सेट का क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो हो गया. अगर मान लो मैं ये कंडीशन हटा, अच्छा एक बात बताओ, A क्रॉस B, A क्रॉस A के अंदर क्या होगा? सब कुछ. अगर मैं ये बोलूं A क्रॉस A के अंदर क्या होगा, तो तुम लोग बोलेगा सर सब कुछ 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, इस तरह करके बहुत कुछ होगा. बहुत कुछ कितना होगा? 3, 3 9 एलिमेंट्स होगा. लेकिन क्या R के अंदर सब कुछ हम लोग ने लिख दिया? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिर्फ फिल्टर्ड एलिमेंट्स लिखा, मतलब सिर्फ हम लोगों ने वो एलिमेंट्स लिखा जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं? क्या हम बोल सकते हैं? तो क्या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर R इज अ रिलेशन इन A, so can I say that R is a subset of A cross A?
I cannot say proper because कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारा जो A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट्स है वही रिलेशन R के अंदर बिलोंग कर जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने भी तुम्हारे A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स ही R के अंदर बिलोंग करें। कभी और ऐसा भी होगा कुछ एलिमेंट्स ही करें, मतलब वही एलिमेंट करेगा जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं R is a subset of A cross A where A and B A is what type of set? It is a non-empty set. Please note down. कैसा सेट है ये? Non-empty set है। रिलेशन हम लोग empty set में कैसे फॉर्म करेंगे? ठीक है? और एक होता है आरो डायग्राम। वन वन के साथ एसोसिएटेड, टू टू के साथ, थ्री थ्री के साथ। ठीक है, ये हो गया एरो डायग्राम। तो कॉपी करना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लाइक क्या था? हां, कोडोमेन फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं। यू कैन राइट दिस वे, ओके? डोमेन के अंदर ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन। रेंज क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन। और कोडोमेन इज द सेकंड कंपोनेंट की सेट को डायरेक्टली बिलोंग कर रहा है। तो पूरा जो सेट है वो क्या बन जाएगा? कोडोमेन। लेकिन इसमें क्या है कि सेट डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है, कोडोमेन भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। Now, next point is types. Types of what? Relations. Okay. So let me start with the first and I mean देखो void relation तो तुमको समझ में आएगा, इसको मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब सेट में void वाला तो तुमको सबको ही को पता है। तो void relation मतलब क्या होता है? मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है उस सेट के अंदर, मतलब उस मेंबर के अंदर, सॉरी उस फैमिली के अंदर जो रिलेशन खोजने के लिए बोला जा रहा है वो वहां नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो उस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ void relation, but make sure that R in A, relation in A must be a what? Non-empty set. Relation can be empty because relation उस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं की। सॉरी R जो के अंदर जो रिलेशन है, जो कंडीशन है वो कोई भी सैटिस्फाई नहीं किया सेट के। सो नहीं लिखा हम लोगों ने, इसीलिए हम void relation लिख रहे हैं बिकॉज़ ये सब क्लियर है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आइडेंटिटी रिलेशंस। तो देखो मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, वी आर स्टडीइंग रिलेशन इन व्हाट? A to B और A? वी आर स्टडीइंग रिलेशन इन A। तो तुम लोग A to B के बारे में सोचना ही मत। वी आर स्टडीइंग रिलेशन इन A एंड व्हाट इज an identity relation? Suppose we have a set A where the elements are 1, 2, 3 and you have a relation R in which the elements are 1, 1, 2, 2 and 3, 3. This is called an identity relation. Identity मतलब ऐसे भी होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है I on A। I on A का मतलब क्या होगा? ऐसे इसका मतलब क्या होगा बताओ तो? आइडेंटिटी। और ये कौन सा रिलेशन है? रिलेशन इन A है। तो इसका मतलब हुआ क्या? सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? रिलेशन R के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? और हर एक एलिमेंट का ही आइडेंटिटी पेयर है। बोल सकते हैं ना हम लोग ऐसा, हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी पेयर है। अगर है तो वो कैसा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आई थिंक आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्लियर हो गया। 3 बिलोंग कर रहा है, 3, 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी है? नहीं। अच्छा, रिलेशन R के अंदर अगर मान लो एक ऑड है 1, 2, तो क्या ये आइडेंटिटी है? तो याद रखना 3 एलिमेंट्स है तो 3 ही होना चाहिए। 4 एलिमेंट है सेट के अंदर तो इसके अंदर कितना होना चाहिए? और वो कैसा 4 एलिमेंट होना चाहिए? आइडेंटिटी का। सो कॉम्पिटेंट फर्स्ट। Sir, आप muted है। Now the second topic is universal relation. Okay. Suppose if R is a relation in A, so that I don't have to write down. So suppose you have a set A. So अब देखो यहाँ पे कैसा सिचुएशन है। अगर सेट A है तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि सेट A से कितने सारे हम ऑर्डर पेयर्स, मतलब A क्रॉस से क्या कितना एलिमेंट्स होगा? I mean sorry, let me just clear once again. A is a set. अगर मैं ये पूछूं कि A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट्स होगा? ऑल टुगेदर 9। तो अगर रिलेशन R के अंदर वो सारा 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट अगर है,
यूनिवर्सल नाम से पता चल रहा है कि हाँ, मतलब ये रिलेशन के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी ऑर्डर पेयर्स है, इससे ज्यादा ऑर्डर पेयर्स फॉर्म नहीं हो सकता उस सेट से, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन. Third point you write down equivalence relation. Write down equivalence relation. Write down. A relation R in A Alright, a relation R in A is said to be an equivalence. Topic क्या लिखा है? Equivalence relation, right? अब लिखो a relation in A is said to be an equivalence relation if R is number one, reflexive relation. If R is number one, reflexive relation. Number two, symmetric relation. And number three, transitive relation. और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक के ऊपर आएगा, दैट इज 100% श्योर. ओके, तो और यही टॉपिक को हम लोग करने के लिए इतने सारे बेसिक्स को हम लोगों ने समझा, ठीक है. तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ये समझाने के लिए मैं एक बस एग्जांपल देता हूं कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है. इसके ऊपर और मतलब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के क्लास में सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है. उसके बाद हम लोग बाकी चीज नेक्स्ट डे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. Now see, what is a reflexive relation? Listen. Every element, listen here, every element which belongs to set A का अगर आइडेंटिटी पे वहां पे बिलोंग करता है, एग्जिस्ट करता है सेट ए रिलेशन आर के अंदर, मतलब वो क्या है बताओ तो? रिफ्लेक्सिव. मतलब ये हुआ कि सेट ए के अंदर 1 है तो 1,1 बिलोंग कर रहा है. यस. सेट ए के अंदर 2 एक एलिमेंट है, क्या वो 2,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? यस. 3 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, क्या 3,3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? यस. मतलब ये कैसा रिलेशन हुआ बताओ तो? दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. बट प्लीज मेक श्योर दैट अगर इसके अंदर 1,2 और 2,3 है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है. मेरी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं. बट अब ये बोलोगे तो कि सर क्या अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 1,5 होगा तो क्या कोई दिक्कत है? तो एक बात बताओ, रिलेशन सेट ए के अंदर एलिमेंट ही नहीं है 5 और रिलेशन आर के अंदर 1,5 कैसे बिलोंग कर सकता है? तो ये रिलेशन ही नहीं है कि पहला बात. रिफ्लेक्सिव का तो दूर का बात. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए याद रखना, फॉर ऑल, प्लीज नोट डाउन, for all A belonging to set A, तो सारे एलिमेंट जो A में बिलोंग कर रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स का आइडेंटिटी पेयर रिलेशन R के अंदर बिलोंग करे, तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. मतलब all identity relation are what type of relation? They are reflexive. But all reflexive are not identity.
यू नो व्हाई? बिकॉज रिफ्लेक्सिव के अंदर आइडेंटिटी का जितने एलिमेंट्स है वो तो बिलोंग करना ही है, कंपल्सरी है। लेकिन एक्स्ट्रा बिलोंग करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। याद है ना तुम लोग को ये चीज? तो इसीलिए क्या लिखा मैंने? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। अब तुम इस एक्स्ट्रा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमेशा इस चीज का नोट करना कि सेट ए के अंदर जितना एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट, पहले हम लोग सेट ए देखेंगे, उसके अंदर जितना एलिमेंट है उसका आइडेंटिटी पे बिलोंग करे। बिलोंग करे मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन नंबर 2। सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग कभी भी ये नहीं देखते कि सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर क्या है। हम लोग ये देखते हैं कि रिलेशन आर के अंदर क्या है। मतलब अगर रिलेशन, देखो एक सेकेंड पहले जस्ट राइट डाउन। जैसे रिलेशन आर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। ये गिनने से भी कोई मतलब नहीं। एक्चुअली द मेन थिंग इज कि क्या 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो इसका इंटरचेंज करके एलिमेंट्स भी क्या आर में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक। लेकिन क्या सिर्फ every ordered pair, please note down, every ordered pair which belongs to relation R का एलिमेंट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दे, सॉरी, क्या अगर हम कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर दे, मतलब फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट बना दे, अगर वो भी बिलोंग कर रहा है R के अंदर, मतलब वो कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। तो एक बात बताओ, तो 1 2 का इंटरचेंज कर दो, 3 3 का, 2 3 का, 3 2 का 2 बिलोंग करे। मतलब अगर इस तरह का एक भी सिचुएशन हो जहां से 2 3 बिलोंग करे और 3 2 ना बिलोंग करे, तो मतलब ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक। तो फिर क्या है पूछोगे? तो वो क्या है? जो कंडीशन बोले उस कंडीशन से हमको बात करना है ना। हमको यहाँ बोल रहा है कि सिमेट्रिक है या नहीं, तो हमको उसके रिस्पेक्ट पे बात करना है। वो क्या है क्या नहीं, हमको उससे क्या मतलब है? बात क्या है, जो पूछेगा उसके हिसाब से मुझे आंसर देना पड़ेगा कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। अभी तो सिमेट्रिक है, 3 2 ना हो अगर तो ये सिमेट्रिक नहीं है। प्लीज कॉपी पेस्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इफ अगर a b बिलोंग कर रहा है में, तो फिर b a भी कंपलसरी है कि r में बिलोंग करना चाहिए। इफ मतलब जो एलिमेंट r के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, बट इसमें क्या है? कंपलसरी है क्या कि जितने एलिमेंट a में बिलोंग कर रहे हैं उन सारे का आइडेंटिटी पे r में भी बिलोंग करना चाहिए। तब जाके इसको क्या बोलेंगे हम लोग? I mean okay, I hope it's clear to everyone. Now मैं चाहता हूँ एक बार कि इतना करके तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब ट्यूसडे, we will complete this relations. ट्यूसडे अपने लोगों का कंप्लीट हो जाएगा रिलेशंस, बट ये चाहते हैं कि जो भी आज मैंने टॉपिक करा है, ये टॉपिक को एक बार बढ़िया से समझ के आना, ठीक है? क्योंकि देखने में लग रहा है कि हम लोग ने आज किया क्या, बट बहुत कुछ, ये जितने छोटे छोटे बेसिक चीजें ना, ये बहुत जरूरत है। और ये बेसिक के बिना हो ही नहीं पाएगा चैप्टर, क्योंकि अपना लोग का जो नेक्स्ट डे का जो हम लोग चैप्टर शुरू कहां से करेंगे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पूरा ये 3 टॉपिक में ही पूरा क्लास खत्म होगा। ओके।